اپوزیشن کی طوفانی اور ہنگامی ملاقاتوں اور لانگ مارچ کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی سیاسی رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ملکی سیاست میں چودھری برادران اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے کل رات لاہور میں چودھری برادران سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف سے مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑنے کی درخواست کی ہے، جس پر کہ چودھری برادران نے ڈٹ کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان بھی کر دیا۔ اچھا، اب اس پر بھی جو ہے نا مختلف خبریں آ رہی ہیں، تو یہ ہمیں ذرا جانچنا پڑے گا کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ مونس الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ اور تھی، طارق بشیر چیمہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ اور تھی، تو وہ ذرا کنفیوژن ہے۔ تو ان پارٹیز میں بھی کنفیوژن ہوگی نا، وہ جب فیصلے پہ آئیں گے تو پھر ہم بھی فیصلے پہ آ جائیں گے۔ ایک طرف تحریک عدم اعتماد کا شور ہے، دوسری طرف پھر لانگ مارچ کا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، پھر حکومت کا ریلیف پیکیج آیا ہے، اتحادیوں سے ملاقاتیں ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں حکومت گھبرا گئی ہے، ایسا کیا ہوا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، یہ تو آپ لوگوں نے تو تابڑ توڑ ایک کے بعد ایک ریلیف پیکیج دینے شروع کر دیے ہیں۔ دیکھیں، ریلیف پیکیج تو جب سے ہماری حکومت آئی ہم نے دینے شروع کیے تھے۔ اب صحت کارڈ ہو گیا، اسی طرح جو احساس پروگرام ہے، اسی طرح کامیاب نوجوان پروگرام ہے، اسی طرح کامیاب پاکستان پروگرام ہے۔ اب یہ انڈسٹریز کے لیے پیکیج دینا، کنسٹرکشن کے لیے پیکیج دیے، تو یہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جی ہم نے ابھی کسی خاص سچویشن میں ہم نے یہ پیکیجز دینے شروع کر دیے۔ ہماری حکومت کا باوجود اس کے کہ ہمارے وسائل، پھر کووڈ جیسی ایک عالمی وبا جس نے کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، صحت کے لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی، اور الحمدللہ ان حالات میں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ کہ جو اپوزیشن جو ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی دنیا کی ساری دنیا ان کی اکانومیز میں بڑا دھکا لگا ہے، کچھ سٹیبل تھیں، کچھ زیادہ مضبوط تھیں، تو ان کو، لیکن ان کو بھی ہوا، ہمارے اپنے جو ریجن میں اس طرح ہوا۔ اب دیکھ لیں آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، بری حالت ہے۔ ہمیں بڑا ہمارا برادر ملک ہے اور ہم نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ حالات نے ایسا بنا دیا۔ اب آئل پرائسز آپ دیکھیں دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں آئل پرائسز اب بات شبلی صاحب ایسی ہے کہ پہلے اپوزیشن کہتی تھی کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی حکومت کو گھر بھیجو۔ اب آپ لوگوں نے قیمتیں سستی کر دی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کیسے سستی کی ہیں، کہاں سے پیسہ لائیں گے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا نا کہ بھائی ساری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، انہوں نے کیسے کم کر دی؟ اس سارے جو پرائم منسٹر کا جو پیکیج جو انہوں نے اناؤنس کیا، جو ریلیف انہوں نے دی، اس سے سب سے بڑی تکلیف اپوزیشن کو ہوئی ہے، اور اس سے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ کس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ایک طرف وہ مہنگائی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اقتدار میں آنے کے لیے، اپنے خلاف جو کیسز ان کے ہیں جو کہ ابھی فائنلٹی کی طرف جا رہے ہیں، اس کو کرنے کے لیے عہدے بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، پوری اس 2 سال میں کسی بھی دنیا میں کوئی بھی اپوزیشن پارٹی آیا وہ سڑکوں پہ نکلی ہے؟ آیا سڑکوں پہ تو ابھی بھی لوگوں نے نہیں نکلے ہیں۔ الحمدللہ لوگ اب کافی سیاسی طور پہ میچور ہیں، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہو، حکومت ڈی سٹیبلائز ہو، پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو۔ اور دیکھیں جب پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے تو اکانومی کو بہت زیادہ دھکا لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے کسی بھی دنیا کے اپوزیشن، دنیا کے اور ملکوں میں اپوزیشن نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں، وہ محب وطن لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک سخت صورتحال ہے ان کے پاس کیا ہے، کیا وہ دے دیں گے۔ پہلے جب ہم پرائسز کا وہ کر رہے تھے کہ جی تیل دنیا میں بڑھ رہا ہے، اب وہی شاید خاقان کہتے ہیں کہ جی دنیا میں تو بڑھ رہا ہے، انہوں نے کم کیسے کر دیا؟ لیکن انہوں نے ہلا دیا ہے ویسے آپ لوگوں کو، کہ خان صاحب جب گئے ہیں چودھری برادران کے پاس تو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کی صفوں میں کھلبلی مچی ہے۔ نہیں، دیکھیں جب کوئی دوسرا شخص یا دوسری پارٹیز جب وہ ہلانے کی کوشش کریں گے تو ہم ہاتھ میں ہاتھ دھرے ہوئے تو نہیں بیٹھیں گے۔ ہم بھی ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہمارے الائز ہیں، ہم نے بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، پولیٹیکل ایکٹیوزم کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا جو اس میں ہمارا پروگرام تو یہ پہلے سے تھا کہ ہم جو ہے تو یہ سندھ میں جو ہے تو جو سندھ کے جو عوام جو جس مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے، اور بالخصوص 14 سالوں سے، 15 سالوں سے، ان کو تو کنٹینیوٹی بھی ملی۔ کیا کیا انہوں نے سندھ کے لیے، کیا کیا کراچی کے لیے؟ آپ کراچی کو دیکھ لیں کہ آپ تو میرا خیال ہے کراچی میں رہ بھی ہوئے ہیں، میں بس وہی تو خون کے آنسور ہوتا ہے کہ آپ جو ہے باہر نکلنا محال ہو گیا ہے، جس طرح کے لا قانونیت ہے، اسٹریٹ کرائم کی صورتحال چل رہی ہے، اسٹریٹ کرائم جو ہے تو کبھی ہسٹری میں ایسے نہیں تھے۔ اب یہ نکلے ہیں ان کا ایسی پارٹی جو کہ ایک ریجن میں تک بڑی، وہ ایک صوبے کے ایک حصے تک
इंटीरियर सिंध की पार्टी है, महदूद हो गई है, महदूद होकर रह गई है। अब वो निकली है पूरे पाकिस्तान में, जिनमें कि सिंध में मुझे आप बताएं पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या है, 2 सीटें नहीं ले सकते हैं। हाँ, अब वो आएंगे तो पता नहीं कितने लोग निकलते हैं, 1-2 सीट नहीं ले सकते हैं बलूचिस्तान में। तो अब वो आए और कहने लगे कि जी हम मुल्क को ठीक करेंगे। लेकिन सर एक और चीज़ है, वो ये है कि अब पेट्रोल की कीमतें तो आप लोगों ने सस्ती कर दी, बिजली सस्ती कर दी, आम आदमी को तो मिल रहा है उसका, लेकिन ये है कि उस तक पहुंच नहीं रहा। मिसाल के तौर पे कल मैंने एक सवाल किया तो लोगों ने ट्वीट के जरिए उसके नीचे जवाब दिए। मैंने पूछा कि वजीर आजम ने तो तेल की कीमतें कम कर ली हैं, क्या ट्रांसपोर्टर ने भी किराए कम कर लिए? तो सब ने लिखा हुआ था नहीं वही है, ये अवाम है और अवाम तो ऐसी है और इन तक समरात नहीं पहुंचेंगे। तो गवर्नेंस का इशू है। 2-3 दिन देखें, 2-3 दिन कुछ तो पॉलिसी जब डिसाइड हो जाती है, उसकी जो फिर इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कुछ 2-4 रोज़ तो लगते हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद ये करेंगे और हमारी उसमें गवर्नमेंट में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंश्योर करेगी कि वो किरायों को नीचे करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये अवाम जो है तो उन पे ये अवाम के लिए उनको फ़ायदा हो जाए और ये जो है तो वो ना करें। तो देखें ना, अब दूसरी बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने इंडस्ट्रियल पैकेज, ये बड़ा चल रहा था, ये सिलसिले चल रहे थे, चूँकि हमारी हुकूमत का जो ये टर्म है उसका 1-1.5 साल रहता है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैच्योर हो रही हैं, अभी कुछ 2 महीने बाद होंगी, कुछ 3 महीने बाद होंगी, ताकि हम चाहते हैं कि जब जितनी भी इस आवाम को रिलीफ मिल सके, मुल्क को एक ऐसे तरक्की के उस पर लाना है। अब इंडस्ट्रियल पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर ने दी, उन्होंने कहा कि पहले ही दे देते वो, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आई विश कि ये पहले हो जाता, लेकिन इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है जी। कोई चीज़ ये नहीं होती है कि कल हमने आज फैसला किया और कल हम उसको अनाउंस कर दें, तो ये टाइम लगे, इसकी टाइमिंग हुई है। लेकिन ये एक ऐसा पैकेज दिया है जो कि बदकिस्मती से इस मुल्क में हमेशा इंपोर्ट को इनकरेज किया गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री लगाना, एक चीज़ जो मुझे सस्ती मिल रही है तो मैं उसकी इंडस्ट्री क्यों लगाऊंगा। इन्होंने आर्टिफिशियल डॉलर को रखा और इंपोर्ट्स को, जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई इस मुल्क में। कोई अब हमारे पास अगर बिजली है तो उसकी खपत नहीं हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री मेन जो कंज्यूमर होता है वो तो इंडस्ट्री होती है। तो ये जो पैकेज दिए हैं और फिर ख़ास तौर पे जो एक्सपेट्रिएट्स को दिया है कि वो आएँ, उससे आपके फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेंगे, उससे जो है तो जो अपना वो उन्होंने जो तजुर्बे और जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो लाएंगे मुल्क में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उस सिलसिले में मैं आपको बताऊँ कि हमारी मिनिस्ट्री बहुत ही प्रोएक्टिव है। हमने पूरी जो अपनी जो नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी बनाई है पिछले महीने, जो कि कैबिनेट से अप्रूव भी हुई है, उसका बुनियादी मकसद यही है कि हम खुद इन्हिसारी की तरफ जाएं, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, हमारी जो रिसर्च है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो रादर देन रिसर्च फॉर रिसर्च। तो हम अभी एक बड़े मरबूत तरीके से हम जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी जो सिविल और जो मिलिट्री का जो वो है रिसर्च है, और हमारा जो वो है इंडस्ट्रीज़ के लिए जो हमने वो करने हैं, अपने लिए अपनी पैदावार को बढ़ाना है, तो उसमें भी एक हमने अब एक पॉलिसी में ले आए हैं कि किस तरह से उनके जो एसेट्स हैं R&D के या हमारे जो एसेट्स हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प कर सकें, ताकि हम इस मुल्क को आगे ले जाएं। और मैं आपको एक बात ज़रूर करूँ, उसके बाद आप जो भी पूछते हैं, देखिए मैं ये समझता हूँ और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, अगर इस मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आनी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी मिनिस्टर हो, ये नहीं कि मैं आज उसका मिनिस्टर हूँ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस मिनिस्ट्री से वाबस्ता है। दुरुस्त है, ऐसा ही। और जब तक कि इसको वो अहमियत नहीं मिलेगी इस मिनिस्ट्री को जो कि बाकी दुनिया में होती है, तो ये मिनिस्ट्री इसी तरह जो है तो चलती रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत में हमने अभी पिछले 1 साल में बड़े रेवोल्यूशनरी से काम किए हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक वाइब्रेंट मिनिस्ट्री बना दी है, जिसमें कि जितने हमारे 18 इदारे हैं उनको हमने रिस्टोर किया है, उनमें लेजिस्लेशन चेंज की है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने रीएडजस्ट किया है। ये सारी के अब सारे इदारे जो है ना वो एक्टिव रहेंगे, लेकिन ये एक प्रोसेस है और मैं ये समझता हूँ। लेकिन कौन कौन से इदारे, अगर आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन कौन से इदारे हैं जिन पर क्या काम हो रहा है? देखें, बुनियादी तौर पे तो जो इदारे तो सारे अहम होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अहम हैं वो हैं, एक तो हमारा पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, जो कि बुनियादी तौर पे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल होता है और साइंस के जितने भी रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग करता है, एक फंडिंग आर्म है।
उसमें हमने स्टेम प्रोग्राम को शुरू किया है। सारी दुनिया स्टेम की तरफ जा रही है और अब हमने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मेरिट बेस ट्रांसपेरेंट बेसिस पे हमने उसको फैलाने के लिए पहले 50 स्कूल किए, अब 500 और फिर ये बढ़ता जाएंगे। फिर अब हम ये प्राइमरी लेवल से भी शुरू कर रहे हैं स्टीम के नाम से, जिसमें हम आर्ट्स को भी डाल रहे हैं। तो हम प्राइमरी लेवल पे जिसमें कि बच्चों की जो तख्लीक का जो वो है वो बचपन से ही शुरू होता है और उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो है। फिर एक और इदारा है PSQCA। PSQCA वो है जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी को असेस करता है। उसमें क्या है कि हमने उसमें वो बड़े मसाइल उधर करप्शन, मिसमैनेजमेंट, एवरीथिंग, मतलब एक इदारा था नहीं था, एक हुजूम था जो कि इकट्ठे हुए हैं और सरकारी लेवल पे वो जो है तो अपना जो भी कर रहे हैं वो हर काम कर रहे हैं सिवाय जो है तो अपनी जो अपना काम करने के, ठीक है। उसको हमने एक तो ये है कि हम उसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट इस्लामाबाद कर रहे हैं। उसमें जो लेजिस्लेशंस हमें चाहिए हमने नए MP स्केल्स के बाहर मार्केट के लोग ला के उनके किया, इसका पहले कोई नहीं था। तो ये इदारा जो कि क्वालिटी जो इंपोर्ट्स आपकी होती हैं या जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें एक ख़ास क्वालिटी स्टैंडर्ड जो कि बने हुए उनको मेंटेन करने के लिए ये इदारा है। दूसरी चीज़ है पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स NIE। इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा हमारे यहाँ सब इंपोर्ट आपको पता है, हर चीज़ लाइटर से लेकर और हर चीज़ तक जो है ना हम इंपोर्ट करते हैं। वो जो पंखे और इनकी मशीनों वाली पॉलिसी हमने वो तो NIE जो है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए हैं और वो इदारा आपका देखें अब हम स्टार्टअप्स का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हम एक टैक्सोनॉमी शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ये मानना है कि इंशाल्लाह आने वाले 1.5 साल में हम तकरीबन 1 लाख नौकरियां क्रिएट करेंगे सिर्फ NIE से। ये टैक्सोनॉमी के थ्रू, ये टैक्सोनॉमी के थ्रू और ये स्टार्टअप्स के थ्रू जो कि हम NIE में इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में हम करेंगे। फिर इस तरह हमने जो है तो ये एनर्जी कंजर्वेशन ने कहा कि जी हम इंपोर्ट कंजर्वेशन पे किसी ने कोई काम नहीं किया था। तो जब मैं आया, मेरा चूँकि थोड़ा बहुत पावर सेक्टर से एक ताल्लुक सा था, तो ये शुरू किया और हमने लो हैंगिंग फ्रूट जिसमें कि पंखों को सिर्फ उसके स्टैंडर्ड्स बना के उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को चेंज करके हमने वो टेस्टिंग किए, एफिशिएंट कर दिए, जिससे कि 3400 मेगावाट की बचत होगी। 3400 मेगावाट का मतलब है कि अगर आप वो प्लांट लगाएं तो $4.5 अरब में वो आता है। फिर इस तरह हम पंप्स जो वाटर पंप्स हैं शहर पूरे चल जाएं बिल्कुल इस पे तो पूरा वो आई मीन 50 हमारे जो पेशावर में वर्सक डैम है, जैसे 50 वर्सक डैम आपने बचा लिए हो। बिल्कुल। फिर इस तरह जो है तो हम पंप्स पे जा रहे हैं, जो वाटर पंप्स जो पानी खींचते हैं इनएफिशिएंट हैं, ख़राब क्वालिटी के हैं, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। और जो ये हमने पंखों का किया है इससे तकरीबन 472 अरब रुपए साल का आवाम को बचेगा, क्योंकि जब बिजली कम खर्च होगी बिल कम आएगा और वो जो स्लैब्स होते हैं उसमें भी वो नीचे की तरफ आएंगे। फिर इस तरह हमने गीजर्स के वाटर गीजर्स गैस भी हम बहुत वही 40-45 साल से जब से हमने होश संभाला है वही चीज़ें हैं, वही है डिज़ाइन भी वही है, उसको इस्तेमाल करने का उसको हमने नया स्टैंडर्ड करके उसके एफिशिएंट बनाया है, जिससे कि आपको तकरीबन 40 MMCFD की वो जो कि अरबों रुपए की और डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं उसकी बचत होगी। इस तरह अब हम हर उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पीछे जा रहे हैं जिसमें कि कंजर्वेशन हो, जिसमें कि एफिशिएंसी। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 18 इदारे हैं जो आप देख रहे हैं। मतलब महीने में अगर आप एक इदारे पर 2 दिन भी लगाओ तो 30 दिन में 15 इदारे हो सकेंगे, फिर भी काम बच जाएगा। ये तो जंग है रोजाना। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारे वो हैं, ये इदारे हैं जो कि एक खास मकसद के लिए बनाए गए हैं और हम उनको ये जो मैंने आपको 3-4 इदारे बताए हैं और PCSIR जो हमारा इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो वो है ज़बरदस्त काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि हमने जो हेम्प पॉलिसी है जो कि हमने कैबिनेट में पेश की हुई है, जिससे कि आपको आज ये फाइनलाइज हो जाए, कैबिनेट से इंशाल्लाह अगले हफ्ते अप्रूव हो जाएगी, तो इसका जो मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, आप अरबों डॉलर इमीडिएटली अगले 2 साल 3 साल में आपकी कम से कम 3 से 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। देखिए ये चीज़ें हैं जो कि हुकूमत कर रही है और ये शॉर्ट टर्म बेस्ड है, ये तो जल्दी भी हो जाएगा। ये बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट है जिसमें कि आप आज ये शुरू होगा तो लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। अगली हुकूमत अगर खुदा ना खास्ता या जो भी कहें आप लोगों की ना हो तो वो क्रेडिट ले रहे हो कि देखो ये तो हमने कर दिया, ये भी होता है। हम तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है ना, उन्होंने कभी हुकूमत को बचाने या हुकूमत के लिए कोई काम नहीं किए हैं, उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कहते हैं। वो कहते हैं मुल्क आगे जाए। कई हमने ऐसे फैसले किए हैं जो कि पॉलिटिकली अनपॉपुलर फैसले थे,
लेकिन हमने किए, क्योंकि जब तक आप मुल्क को आगे नहीं ले जाएंगे तो हुकूमतें आती जाती रहे, हमने देखा है पिछले 70 साल में। इट्स ऑल अबाउट दैट। लेकिन एक्सपेक्टेशन आप लोगों की है, मतलब गिवन द हेल्थ कार्ड, चौधरी साहबान ने आप लोगों को कह दिया है कि हाँ हम अभी तो आपके साथ हैं। देखें बिल्कुल, देखें हमारे साथ हमारे इत्तेहादी खड़े हुए हैं और ये उनकी भी उस सोच की अक्कासी करता है कि उन्होंने भी उस विजन को कि हमने इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, हमने मुल्क को आगे ले जाना है, तो वो हमारे साथ खड़े हैं। और दूसरी ये है कि उनके पास अब देखिए ना, जो PMLN है या पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी तो बेचारे अब वो एक सूबे से भी कम में रह गए हैं। अब वो जो है तो किस तरह उनके पास क्या प्लान है क्या नहीं है, नून वाले हैं उनको आपको पता है PMLN is your challenge सर, पंजाब है और PMLN है असल तो चैलेंज। आपस में कितने इख्तलाफात हैं, शायद खाकान एक बात करता है, शहबाज शरीफ कोई और बात करते हैं, बाकी पार्टी और बात करती है, तो उनके अंदर भी अभी वो नहीं है। लेकिन आप लोगों के वो जहांगीर तरीन साहब वाले मामलात भी अब सेटल होने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे हर पार्टी में तबीयत का हाल अहवाल पूछ लिया गया है, कुछ वो होते हैं, कभी ताल्लुक अच्छे हो जाते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं, ये तो एक पॉलिटिकल एक कल्चर का एक हिस्सा है, हर पार्टी में ये होता है। हाँ। तो अब जाहिर है कि लेकिन जब पार्टी के उस पर आएगा, सर्वाइवल की बात आएगी, तो जाहिर है कि जितने भी हमारे अलाइज हैं वो उसमें हमने देखा पास तक। आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, 2 हफ्ते पहले सेनेट में क्या हाल हुआ, अपोजिशन जो मेजॉरिटी में हार गई बिकॉज उनके अपने लोग उनके साथ नहीं। लेकिन ऑन अ वाइडर नोट, मतलब ऑन अ वाइडर स्केल, वोटर आप लोगों का इस चीज को समझेगा कि आप लोगों ने जो भी फैसले किए वो मुल्क की और उसकी बेहतरी के लिए किए और वोट पड़ेगा 2023 में इंशाल्लाह। बिकॉज देखिए जी, ये जो एक तो है ना महंगाई है, जाहिर है कि वो हर एक बंदे को इफेक्ट करती है, और ख़ास तौर पे उस तबके को जो कि माशी तौर पे इतना ताकतवर नहीं होता है तो उसको ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हमारा यही एक चैलेंज है। बाकी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पॉलिसी ले लें, अब देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए हम सेहत का, हमारा जो सेहत का कार्ड है जिसमें कि एक ऐसा हमने एक प्रोडक्ट दे दिया है जो कि आलमी तौर पे एक्सेप्टेंस है, लोकली उसको लोग वो कर रहे हैं कि हर उस ख़ानदान के जेब में हमने 10 लाख रुपए डाल दिए तो उसको बीमारी की सूरत में अल्लाह बीमारी न लाए, लेकिन अगर हो तो उसके लिए एक मौजूद है, बिल्कुल हुकूमत की तरफ से एक प्रोडक्ट मौजूद है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने। और नाज़रीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है तो बस वही है कि यही है चीज़ जो कि आगे लेके जा सकती है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की मिसाल ऐसी है कि जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी मईशत को ज़मीन से आसमान की तरफ वो ले गए, और यही हमें भी करना है।